Assistant Professor in RIT Greater Noida. Today's my lecture topic is micromeritics. What is micromeritics? First we have to understand what is micromeritics. Micromeritics is the study of particle size in micrometer. If the particle size of any formulation in micrometer and we have to study about that is called micromeritics. तो जितनी भी पार्टिकल साइज की स्टडी होती है हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? माइक्रोमेरिटिक्स के अंदर. अब माइक्रोमेरिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है फार्मेसी के लिए? माइक्रोमेरिटिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है फार्मेसी के लिए? सो द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोमेरिटिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 4 पॉइंट्स. फर्स्ट, ड्रग रिलीज, एब्जॉर्प्शन, स्टेबिलिटी, how particle size affect the drug release. Drug release, how it is affect? When the particle size is small, then the surface area of particle is very high. So whenever the particle size is small, surface area is large, then the release of drug from the formulation is increases. जितना छोटा particle size होगा, surface area ज़्यादा होता जाएगा, surface area ज़्यादा होगा तो डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ड्रग रिलीज उसका ज़्यादा हो जाएगा. हाउ इट इफेक्ट द स्टेबिलिटी? जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज एक और यूनिफॉर्म साइज का होगा, व्हेन एवर द पार्टिकल साइज ऑफ एनी फॉर्मुलेशन इज in uniform size, then the dose uniformity will occur. If dose uniformity is not there, then whenever you take 5 ml of sample from any suspension, then dose will different in every other administration. So the particle size affect the drug release, stability, dose uniformity, absorption and dissolution. These 4 basic parameters which is affected by particle size. That's why micromeritics is very important in preparing any formulation. So the topic that is come particle size. Now we have to determine the particle size. हम particle size कैसे निकाल सकते हैं? हम particle size निकाल सकते हैं 4 मेथड से. sieving method, sedimentation method, optical microscopy, conductivity method. In sieving method we can measure up to particle size from 50 to 1500 micrometer. In sedimentation method we can measure particle size from 1 to 200 micrometer. In optical microscopy method we can measure particle size up to 0.2 to 100 micrometer, and in conductivity method we can measure particle size from 0.5 to 500 micrometer. So first we discuss about sieving method. Every student in pharmacy know in first year में आगे आपको पता चल जाता है कि sieves क्या होते हैं. sieves हैं तो sieves आपके sieving methods में यूज होंगे. कैसे यूज होंगे ये मैं आपको बताती हूँ. आपको 4 सेट ऑफ sieves लेनी है. जैसे कि मैं ये ले रही हूँ, ये देखिए ये 4 सेट ऑफ sieves हैं, इनको आपको लेना है और ये चारों ही sieves जो है डिफरेंट नंबर्स की हैं. डिफरेंट नंबर, फॉर एग्जाम्पल पहली sieve है 10, दूसरी sieve है 22, 40 एंड 60. तो आपको जो sieve लेनी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ sieve नंबर में लेनी है. बट वी नो दैट कि if sieve number is 10 then aperture size is large, if sieve number is 22 then aperture size is smaller than 10. So as the number of sieve increases, aperture size decreases. So we set the sieves in increasing order of sieve numbers to determine the particle size of powder. Particle size of powder को डिटरमाइन करने के लिए अगर आप सीविंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर टेलकम पाउडर्स या जो भी पाउडर आपकी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उनको अगर हमें डिटरमाइन करना होता है कि उनका पार्टिकल साइज कितना है तो हम सीविंग मेथड यूज़ करते हैं. उस सीविंग मेथड के लिए हम 4 सीव लेंगे. कोई भी 4 डिफरेंट नंबर की सीव हो सकती है. इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आप उसे सेट कर देंगे. जब आप उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे कि जैसे मैंने ये ले लिया 10, 20, 22 एंड 44, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे मैकेनिकल शेकर में रख देना है. मैकेनिकल शेकर का काम क्या होता है? वो सिर्फ इसे शेक करेगा और उसे आपको 20 मिनट तक शेक करना है. शेक करना है, लेकिन आप जो पाउडर ले रहे हैं जिसका पार्टिकल साइज आपको निकालना है उसे सबसे पहले वे कर लीजिए. तो मान लीजिए आपने पाउडर लिया 5 ग्राम. उस 5 ग्राम को पाउडर को वे करने के बाद आप सबसे ऊपर वाली सीव में डाल दीजिए.
सीव में डालने के बाद जब आप मैकेनिकल शेकर में रखेंगे तो सीव अपने आप ही 20 मिनट तक जब आप सेट कर देंगे वो शेक होने लगेगी। आफ्टर 20 मिनट्स 5 ग्राम ऑफ पाउडर आर रिटेन्ड ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ सीव्स। अब आपको 10 नंबर सीव पे, 20 नंबर सीव और 40 नंबर सीव और 60 नंबर सीव पे अलग अलग वेट का पार्टिकल्स मिल जाएगा। अब आपको उनका वेट ले लेना है कि 10 नंबर पे कितना पार्टिकल का वेट आ रहा है, 20 नंबर पे कितना पार्टिकल का वेट आ रहा है, 40 नंबर पे कितना पार्टिकल का वेट आ रहा है और 60 नंबर पे पार्टिकल्स का वेट कितना आ रहा है। जब आप उनका वेट ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 नंबर वाली सीव पे मान लीजिए कि उस 5 ग्राम में से 1 ग्राम जा रहा है और 22 नंबर वाली पे 2 ग्राम जा रहा है, 40 नंबर वाली पे 0.5 जा रहा है, 60 नंबर वाली पे रिमेनिंग पार्ट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 ग्राम जो सबसे ज्यादा 22 नंबर वाली पे जा रहा है, यानी कि ज्यादातर पार्टिकल साइज किस सीव नंबर के पास रिटेन हुए, 22 नंबर पे। इफ 22 नंबर सीव हैज a particle size of for example 150 micrometer, then the maximum number of particle in the 5 gram powder it is of 150 micrometer. So this is the sieving method. So how will you determine? I am explaining it again. Arrange the sieve number in increasing order. Arrange the sieves in increasing order of sieve number. Put the 5 gram powder or weight powder on the uppermost sieve. Then shake it for 20 minutes. After 20 minutes, weigh the powder of all the sieve that is remained on its top. Then you have to determine the aperture size of that sieve number. That sieve number aperture size gives the size of particle. This is called sieving method. Next is sedimentation method. This sedimentation method, in this we can measure up to 1 to 200 micrometer particle size of any powder sample. This sedimentation method can also be known as Anderson pipette method. Here I made the diagram of Anderson pipette. Anderson pipette method is also known as sedimentation method, and this is the live example of Anderson pipette. Here you see Anderson pipette. This is this vessel, and this glass tube is this. So I explain this Anderson pipette. This Anderson pipette is of 550 ml. So I put it 550 ml vessel, and this pipette is containing a bulb. This pipette containing a bulb. This bulb is of 10 ml volume. So the powder जिसका आपको पार्टिकल साइज निकालना है, सबसे पहले आप उसका सस्पेंशन बनाएंगे और सस्पेंशन बनाने के बाद इस 550 ml की वेसल यानी कि इसमें पुट कर देंगे उस सस्पेंशन को जिसका आपको पार्टिकल साइज निकालना है उस पाउडर का। फॉर एग्जांपल हमें कैल्शियम कार्बोनेट का पार्टिकल साइज निकालना है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का सस्पेंशन बनाएंगे और सस्पेंशन बनाने के बाद 550 ml सस्पेंशन बनाने के बाद उसे हम इसमें डाल देंगे इस वेसल में। दिस इज 550 ml। अब हमें पार्टिकल साइज निकालने से पहले इसे शेक कर लेना है क्योंकि सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन हो जाता है। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको उसे शेक कर लेना है। जब आप उसे स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही आप उसे शेक कर लेंगे उसके बाद आप इसमें ये 10 ml और ये जो 10 ml बल्ब वाली पिपेट है वो इसके अंदर डाल देंगे। इस पिपेट की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें 2 वे स्टॉप कॉक लगा है, इसे हम कहते हैं 2 वे स्टॉप कॉक। जैसा कि मैं ये आपको दिखा रही हूँ, दिस इज 2 वे स्टॉप कॉक। दिस 2 वे स्टॉप कॉक कैसा होता है, इसमें 2 ओरिफिस वर्टिकल में होते हैं और एक ओरिफिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है। वर्टिकल में जो 2 ओरिफिस होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, जब भी हम यहाँ से अपने सस्पेंशन को सक करेंगे तो ये ओरिफिस यहाँ से जब आप सक करेंगे तो ये 10 ml के पिपेट में आके सस्पेंशन सक हो जाएगा। उसके बाद हम नॉब घुमा देंगे तो सस्पेंशन 10 ml का इसमें आके रुक जाएगा इस बल्ब में। तो जो भी सस्पेंशन आपने बनाया है उसे पहले शेक कर लीजिए। शेक करने के बाद उसे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे सक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सस्पेंशन बनाया और उसे 10 मिनट बाद सक किया। अब 10 मिनट बाद इसमें सेडिमेंटेशन हो जाएगा और पार्टिकल जब सक करेंगे तो इसमें 10 ml आ जाएगा। उसके बाद इसमें एक ओरिफिस जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, हम नॉब घुमाएंगे तो
की तरफ आ जाएगा। तो हम उससे 10 मिनट बाद